Hello kids, welcome to the class. I hope you all are doing well. आप सब लोग अच्छे से हो, happy and healthy and safe in the confines of your home. Of course अभी घर के अंदर हैं सब सारे बच्चे, but it is not at all required to come out of your homes right now because इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. अभी बाहर आपके लिए आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. स्टेइंग होम इज द बेस्ट प्रिकॉशन विच यू कैन टेक एट द मोमेंट. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी फूड, ईट न्यूट्रिशियस फूड, drink lots of water, keep yourself hydrated and enjoy your classes, enjoy your videos. And at the same time, you can do whatever you want to do. जो भी आपको अच्छा लगता है अभी आप कर सकते हो because you have got lot of time. अभी बहुत सारा टाइम है. जो काम करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, डांसिंग अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो. So, coming back to the class, we have almost completed chapter number 3, which is my family. Okay, chapter number 3 पूरा हमने कर लिया है. A small exercise is still left. After completing that exercise, I will start chapter number 4 today. Your EVS book is Think Green Environmental Studies. Okay, so we will first complete the exercise of chapter 3 and then will proceed to chapter 4. चैप्टर नंबर 3 की एक छोटी सी एक्सरसाइज, छोटा सा वर्क बचा है. उस वर्क को कंप्लीट करके फिर हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे. ठीक है. ओपन पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 पे देयर इज अ स्मॉल एक्सरसाइज. यस्टरडे कल मैंने बताया था कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ फैमिली ट्री. फैमिली ट्री क्या होता है कल मैंने बताया था. सो फैमिली ट्री इट स्टार्ट्स विथ, पता नहीं बहुत पहले कभी से स्टार्ट हुआ होगा, फिर उनके बच्चे 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 ऐसे करके एक के बाद एक जनरेशन आती जाती हैं. सो हियर ऑन पेज नंबर 19 यू विल सी इट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी. मतलब ये आप सबको अलग अलग करना है. ओके, द एक्टिविटी इज understanding the family tree. Now here you can see that Mr. Mohan and Joita, they have a son named Rohan. Mr. Mohan and Joita का एक बेटा है, उसका नाम है रोहन. रोहन is married to Deepika. रोहन की शादी किससे हुई है? दीपिका से. And Rohan and Deepika के they have 2 children, one son and one daughter. Son's name is Azad and daughter's name is Akriti. Okay, this is the family. Mr. Mohan and Joita, then Rohan and Deepika and Azad and Akriti. Now on page number 20, you have to do is complete the table given below. ये जो family दी है, according to this family, you have to complete this table. First, you have to write the name of Rohan's parent. I will just put the number. First, you have to write the name of Rohan's parents. So, what are the names of Rohan's parents? They are Mr. Mohan and his mother is Joita. Okay. So, Mr. Mohan and Joita are Rohan's parents. Then who are Akriti's parents? Now Rohan is married to Deepika and they have 2 children. Their names are Azad and Akriti. So who is Akriti's parents? Akriti's parents are Rohan and Deepika. Akriti's parents are Rohan and Deepika. Okay.
third is Mohan's wife. Who is Mohan's wife? Mohan's wife, as you can see, is Joyita. So Mohan's wife is Joyita. Joyita. Okay. Then fourth is Deepika's in-laws. In-laws मतलब अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड के साइड के लोग, और हस्बैंड है तो वाइफ के साइड के लोग. दे आर द in-laws. So who are Deepika's in-laws? Deepika's in-laws are again Mr. Mohan and Joyita. Then Rohan's wife. Who is Rohan's wife? Rohan's wife is Deepika. Rohan's wife is Deepika. Then who are Azad's grandparents? Azad के grandparents कौन है? तो grandparents means his father's parents. So they are again Mr. Mohan and Joyita. Mr. Mohan and Joyita. Then who is Azad's sister? Azad's sister is, as you can see here, his sister is Akriti. Aakriti. Akriti. 5. Seventh was who is Akriti's brother. Akriti's brother is Azad. Seventh is Akriti's brother. Akriti's brother is Azad, and Azad's sister is Akriti. Okay. Then who is Deepika's son? Deepika's son is again Azad. Deepika's son is Azad. And who is Rohan's daughter? Rohan's daughter is Aakriti. Akriti. Okay. So this is an individual activity. Now life skills. लाइफ स्किल्स का मतलब होता है जो स्किल्स हमें हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती हैं. ओके. लाइफ स्किल के लिए आपको कुछ अलग से यू नीड नॉट रीड टू मेनी बुक्स. ऐसा नहीं है कि क्लास में जब तक आपको कोई नहीं पढ़ाए तब तक आप नहीं सीख सकते हो. लाइफ स्किल्स का मतलब होता है ऐसी स्किल्स जो कि हमें हमारी रोज की लाइफ में काम आती हैं. ओके. लाइक हाउ मेनी एक्टिविटीज गिवन इन द पिक्चर डू यू परफॉर्म एट होम फॉर योर फैमिली. मतलब इनमें से जो भी वर्क है आप कौन कौन से काम फैमिली में अपने घर पे करते हो अपनी फैमिली के लिए. पुट टिक मार्क और क्रॉस मार्क इन द बॉक्सेस बिलो. मतलब जो आप काम करते हो. लाइक बेड को ठीक करना, बेड पे पिलो लगाना, वाटर बॉटल फिलअप करना, टॉयज को अपनी जगह पे रखना, डस्टिंग करना, ये सारे काम करते हो. टेबल पे आके सो जाते हैं? नहीं सोते हैं. टेबल इज मेंट फॉर, डाइनिंग टेबल इज मेंट फॉर ईटिंग, स्टडी टेबल इज मेंट फॉर स्टडिंग. ठीक है. सो लाइफ स्किल का मतलब है ऐसी चीजें जो आपको रोज काम आती हैं. ओके. सो we have completed the lesson, and now I will start lesson number 4, that is my home. Till now अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा about me, मतलब हमारे बारे में. फिर हमारे बारे में मतलब how do you introduce yourself, अपने बारे में आप कैसे बताते हो. फिर हमने पढ़ा parts of my body, हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं. देन हमने क्या पढ़ा? माय फैमिली, कि फैमिली क्या होती है, फैमिली में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, व्हाई फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस. नाउ द चैप्टर नंबर 4 इज माय होम. ओके.
chapter number. Chapter 4 is my home. Home का मतलब घर. So my home means मेरा घर. अपने बारे में पढ़ा, अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अपनी फैमिली के बारे में पढ़ा. अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मेरा घर. My home. We all need a home to live. हम सबको घर चाहिए होता है ना. Even animals have their own home. Now in this chapter we will learn about what is the requirement of a home. घर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमें घर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना. देन घर में बहुत सारे रूम होते हैं. कौन कौन से अलग अलग रूम्स होते हैं. ठीक है. उनके क्या पर्पस होते हैं. वाई डिफरेंट रूम्स आर देयर. और हाउ डू वी मेक अ होम. घर हम कैसे बनाते हैं. ओके. सो दिस इज द चैप्टर माई होम. You can see this picture. All of us live in a house. We live here with our family members. We make a house into a home with love, care, and by respecting and helping each other. First, you must understand that why do we need a home. घर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. घर हमें किससे किससे प्रोटेक्ट करता है. हीट मतलब बहुत गर्मी से, कोल्ड बारिश से, रेन कोल्ड मतलब ठंड से, बारिश से, थीव्स मतलब जो चोर डाकू वगैरह होते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल्स. यू कैन सी हीट, बहुत तेज सन होता है तो बहुत गर्मी हो जाती है. कोल्ड, ठंड के दिन में ठंड होती है. रेन, लाइक अभी जैसे बारिश हो रही है. देन थीफ, यू कैन सी अ थीफ स्टैंडिंग आउटसाइड. वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. देन अ हाउस हैज डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एक घर में अलग अलग रूम होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. एंड वी लिव इन अ हाउस विथ आवर फैमिली मेंबर्स and make it a home with love and care. हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से प्यार से मिलजुल करके रहते हैं. ठीक है. Now all of us live in a house. हम सारे घर में रहते हैं. We live here with our family members. हम यहाँ पे किसके साथ रहते हैं. अपने फैमिली मेंबर्स. मीन्स अभी इसके प्रीवियस लेसन में हमने फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ा. पेरेंट्स, brothers, sister, grandparents, uncle, aunts, cousins, lot of family members are there. तो हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं. We make a house into a home with love, care and by respecting and helping each other. Now you may ask, what is the difference between house and home? हाउस और होम के बीच में क्या डिफरेंस है. हाउस माने भी घर एंड होम माने भी घर. Isn't it? हाउस का मतलब भी घर होता है और होम का मतलब भी घर होता है. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. हाउस एंड होम में थोड़ा सा डिफरेंस है. वेन वी मेक अ हाउस, जब एक घर बनता है, वेन इट इज कंस्ट्रक्टेड, आप बिल्कुल शुरू से तो उसमें रहने नहीं जाते हो. फर्स्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टेक्स प्लेस. पहले पूरा घर बनता है. ठीक है ना. तो वेन द हाउस इज मेड, जब घर बनता है तो उसमें क्या होता है. कोई रहता नहीं है, उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है, कोई चीज नहीं है. क्या होता है. ओनली द वॉल्स आर देयर. हाउस की वॉल सिर्फ होती हैं. ठीक है ना. तो वेन पीपल मूव इन टू द हाउस, किसी ने अपना घर बनवाया तो पहले घर के सिर्फ वॉल्स हैं, खाली खाली वॉल्स है, डोर्स है, विंडोज है, सब कुछ है, कोई नहीं रह रहा है. तब उसको कहते हैं इट इज अ हाउस, माई हाउस. वेन
people go and live there, जिसने घर बनवाया, जब वो लोग अपनी फैमिली के साथ वहां जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से शौक से अपने जो भी मन होता है, जैसे भी मन होता है, उसको डेकोरेट करते हैं, उसमें अच्छे से रहते हैं, देन वी कॉल इट अ होम। फिर कहते हैं हमारा घर, आवर होम। जैसे सुना होगा ना, पीपल से होम स्वीट होम। होम स्वीट होम का मतलब है जहां हम प्यार से, मेरा प्यारा घर, ठीक है ना। अपना अपना घर सबको बहुत प्यारा होता है। कहीं हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं, बट देन फिर लगता है कि बहुत घूम लिया, अब अपने घर जाना है। और घर आकर के हमको जितना कंफर्ट मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता है। आफ्टर ऑल इट इज आवर होम। घर में हम अपने कैसे भी रह सकते हैं, किसी भी तरह से रह सकते हैं। सो द सेंटेंस, वी मेक अ हाउस इनटू अ होम विथ लव, केयर एंड बाय रिस्पेक्टिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। हम हाउस को होम कैसे बनाते हैं? जब हम उसको अच्छे से, अपने हिसाब से अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके अंदर सब लोग जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब हम घर के अंदर प्यार से रहते हैं, देन अ हाउस बिकम्स आवर होम। फिर हमारा जो हाउस होता है वो क्या होता है? हमारा होम बन जाता है। ठीक है। सो हाउस की हमें क्यों जरूरत है? हाउस हमें हीट से, मतलब जब बहुत गर्मी होती है तो बाहर अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल बाहर नहीं रहते हैं। बाहर रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लू लगती है। जब बहुत गर्मी होती है तो मम्मी अंदर घर के रखती है ना, मम्मी कहती है नहीं घर से बाहर नहीं जाओ। जस्ट इमेजिन, अगर घर नहीं होगा तो बाहर धूप में घूमना पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर घर नहीं होते हैं, वो कहीं कहीं कैसे कैसे रहते हैं। वी आर सो लकी दैट वी हैव प्रॉपर होम। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास रहने के लिए प्रॉपर घर है। ओके। तो हाउस हमें गर्मी से बचाता है, कोल्ड, जब बहुत ठंड हो जाती है, स्कूल बंद हो जाता है, बहुत ठंड की वजह से स्कूल बंद हो जाता है ना, तो आप कहाँ रहते हो? घर के अंदर आराम से रजाई के अंदर घुस के रहते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है तो हीटर चला के रखते हैं, ब्लोअर चला के रखते हैं, घर पूरा वार्म हो जाता है। ठीक है ना। तो घर हमें हीट से प्रोटेक्ट करता है, घर हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, बारिश से प्रोटेक्ट करता है। इट इज रेनी सीजन नाउ, अभी बारिश का सीजन है, बहुत तेज बाहर बारिश हो रही है। ठीक है। तो आप बाहर रहोगे तो क्या होगा? भीग जाओगे। बाहर रहने पे तो भीगोगे। तो हम घर के अंदर रहते हैं, आराम से हम घर के अंदर बैठ के अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं और बाहर बारिश देखते रहते हैं, बारिश एंजॉय करते हैं। देन अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, मतलब चोर डाकू। बहुत बार पेपर में आप पढ़ते होगे, न्यूज में देखते होगे, चोर चले गए घर में, चोर घुस गए कहीं से दीवार तोड़ करके या दरवाजा तोड़ के या लॉक तोड़ करके। थीव्स चले गए, चोर गए, घर का सारा सामान चुरा लिया। तो अगर हम घर के बाहर रहेंगे तो हम प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, तो वो हमें मार भी सकते हैं। तो द हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स ऑल्सो। देन वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंसेक्ट बाइट्स है। बाहर हम रहेंगे तो हमको बहुत तरह के इंसेक्ट काटते रहेंगे। कभी होता है ना, कभी रात में आप बाहर रहते हैं रात को और गर्मी होती है, फैन नहीं है, तो कितने मच्छर काटते हैं। तो हमको कितनी इरिटेशन होती है ना कि बाप रे बाप कितने मच्छर हैं बाहर। तो मच्छर है, रेनी सीजन में मक्खियां होती हैं, कितने तरह के इंसेक्ट होते हैं। तो हाउस जो है हमें वो इंसेक्ट से, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, कोल्ड, रेन, हीट, सब चीज से प्रोटेक्ट करता है। मतलब अ हाउस कीप्स अस सेफ एंड प्रोटेक्टेड। जो घर है वो हमें सेफ और प्रोटेक्टेड रखता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। Now turn the page, page number 22. Turn the page, this is page number 22. Now, types of room. Types of rooms. In a house, there are different types of rooms. A house has many different rooms. जैसे अब घर में अलग अलग बहुत रूम होते हैं,
आप सारा काम एक रूम में तो नहीं करते हो, है ना। खाना बनाने के लिए अलग रूम है, सोने के लिए अलग रूम है, खाने के लिए अलग रूम होता है, स्टडी के लिए अलग रूम होता है। कोई अगर गेस्ट आता है, कोई बाहर से लोग आते हैं, तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनको बिठाने के लिए अलग रूम होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन अ हाउस एंड हर रूम का पर्पस अलग अलग होता है। सब अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रूम्स होते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, this is a house. Then you can see the different types of, these are the different types of rooms in a house. ये जितने आपको rooms दिख रहे हैं, जितने ये सारे different types के rooms हैं. Now let us see what are these rooms. Drawing room, then you can see bedroom, then you can see kitchen, then dining room, study room, bathroom, store room. There are so many different types of rooms. and ये जितने भी रूम है सबका पर्पस अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग काम है. ओके. A house has many different rooms. They serve different purposes. जितने हाउसेस हैं सबका पर्पस अलग अलग होता है. ओके. Now let us see. अभी हम देखते हैं कि हर एक रूम का क्या काम होता है. फर्स्ट इज वी मेक आवर गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम. फर्स्ट इज ड्राइंग रूम. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइंग रूम? ड्राइंग रूम का क्या पर्पस है? जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या बाहर से आते, कई बार लोग मिलने आते हैं, घर में गेस्ट आते हैं, तो उनको हम कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में. घर में गेस्ट को बिठाने के लिए एक जगह होनी चाहिए ना, बिकॉज हर किसी को हम घर के अंदर नहीं ला सकते हैं. कोई बहुत क्लोज है, रिलेटिव्स हमारे, तब तो वो लोग हमारे घर के अंदर आते हैं, घर में रहते हैं सबके साथ. बट बहुत बार ऐसे लोग आते हैं घर में जिनको कि हम एकदम घर के अंदर नहीं ला सकते, तो उनको बिठाने की कोई जगह होनी चाहिए. सो ड्राइंग रूम इज देयर. ड्राइंग रूम में जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे घर में जो भी गेस्ट आता है, उनको हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं. ठीक है. वी मेक आवर गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम. देन सेकेंड इज बेडरूम. वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. बेडरूम का क्या पर्पस है? बेडरूम में, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, बेड रूम. बेडरूम में बेड्स होते हैं जो कि जहां पे कि हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं. ठीक है. बेडरूम में हम सोते हैं और रेस्ट करते हैं. देन थर्ड इज, यू कैन सी किचन. थर्ड इज किचन. किचन में क्या होता है? किचन में हम खाना बनाते हैं. किचन सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है. ओके. किचन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर कुकिंग पर्पस. खाना बनाने के लिए हम किचन यूज करते हैं. देन फोर्थ इज, यू कैन सी डाइनिंग रूम. वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम. डाइन मतलब खाना. DINE. डाइन का मतलब होता है खाना खाना. खाना खाना. खाना खाना सी दोनों वर्ड सेम है. खाना, फर्स्ट खाना मीन्स फूड और दूसरा खाने का मतलब है ईट. ठीक है. सो डाइनिंग रूम मतलब खाना खाने की जगह, जहां हम बैठ करके खाना खाते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी इज द स्टडी रूम. यू कैन सी दिस इज स्टडी रूम. स्टडी रूम मतलब जहां पे आप बैठ करके आराम से पीसफुली विदाउट एनी डिस्टरबेंस आप पढ़ सकते हो. कहीं और बैठ के पढ़ रहे हो, कभी कोई आया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो आप जहां पे पीसफुली बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से बैठ के पढ़ सकते हो. सो दैट इज योर स्टडी रूम. नेक्स्ट यू कैन सी इज बाथरूम. बाथरूम सबको पता है. बाथरूम में हम फ्रेश होने जाते हैं. वी टेक बाथ इन द बाथरूम. ठीक है. मॉर्निंग में उठे, ब्रश किया, फ्रेश होने गए, नहाना, ये सारे काम हम कहाँ पे करते हैं? बाथरूम में. एंड देन यू कैन सी स्टोर रूम. स्टोर रूम में हम जैसे ऐसी कोई चीज है जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, हमको अभी अपने घर के अंदर नहीं रखना है, तो हम स्टोर रूम में उठा करके रख देते हैं.
स्टोर रूम में बेसिकली लोग घर की पुरानी चीजें हैं, जिन चीज की अभी जरूरत नहीं है, पुरानी बुक्स हैं, पुरानी कॉपीज है, या जैसे और एक्स्ट्रा बॉक्सेस वगैरह, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज घर की जिसकी कि हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोग उसको कहाँ रख देते हैं, उठा के स्टोर रूम में रख दिया. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रूम्स. बहुत बार बहुत जगह घरों में लिविंग रूम भी होता है. लिविंग रूम इज नॉट गिवन हियर. बहुत सारे घरों में लिविंग रूम इज ऑल्सो देयर. LIVING, लिविंग रूम. लिविंग रूम का मतलब है जहां पे ऐसे ही आप लोग अपने स्पेयर टाइम में, फ्री टाइम में बैठते हैं, चाय पीते हैं, टीवी लगा के रखते हैं, टीवी देखते हैं बैठ के, ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, गप मारते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, अभी सपोज टीवी जो है बेडरूम में लगा हुआ है, कोई सो रहा है, यू आर स्लीपिंग, किसी और को टीवी देखना है, तो टीवी देखना है तो आपको डिस्टरबेंस हो रहा है. ठीक है ना. ड्राइंग रूम में अगर टीवी लगा है, सपोज कोई आकर के गेस्ट बैठा हुआ है और आपके फेवरेट कार्टून शो का टाइम हो गया, तो कैसे टीवी देखोगे. ठीक है ना. स्टडी रूम में लगा है तो पढ़ने में डिस्टरबेंस होता है. तो बहुत बार घरों में दिस इज ऑल्सो देयर लिविंग रूम जहां पर लोग अपना आराम से बैठते हैं, टीवी लगा के रखते हैं, कुछ म्यूजिक सुनना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है तो लिविंग रूम में करते हैं. ओके, सो ड्राइंग रूम मीन्स when somebody comes to your house, when some guests come, we make them sit in the drawing room. बाहर से कोई आता है तो कहीं उनको बिठाया जाता है, उनको चाय वगैरह देना है, पानी देना है, जो भी देना है, तो कोई जगह होनी चाहिए. सो वी मेक देम सिट इन द ड्राइंग रूम. बेडरूम का क्या पर्पज है? बेडरूम में हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं. ठीक है ना. दिन भर काम करके थक गए, अब आराम से जाके सोएंगे. सो बेडरूम में वी स्लीप इन द बेडरूम. देन किचन इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, जहां पे मम्मी खाना बनाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं खाने के आपके लिए. देन डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल इज देयर, डाइनिंग चेयर्स आर देयर, जहां पे घर के सारे लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं. ठीक है. ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जहां पे सब लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं. दैट प्लेस इज डाइनिंग रूम. डाइन माने जैसे मैंने बताया, डाइन का मतलब होता है खाना खाना. सो डाइनिंग रूम मीन्स द रूम विच इज यूज्ड फॉर ईटिंग. ठीक है, जहां पे डाइनिंग टेबल है, खाना खाने के लिए यूज करते हैं. स्टडी रूम मतलब जहां पे आप अपनी सारी बुक्स रखते हो. कंप्यूटर आजकल सब बच्चे यूज कर रहे हैं, आप अपना कंप्यूटर रखते हो, अपनी स्कूल बैग है, बुक्स, नोटबुक्स, कलर्स, एवरीथिंग, जो भी आपके स्कूल का सामान है, आप सारा अपना स्टडी रूम में रखते हो. सो दैट कभी भी जरूरत पड़े, यू डोंट हैव टू रन अराउंड कि अरे मेरी बुक कहाँ गई, मेरी इंग्लिश की बुक कहाँ है, मैथ्स की नोटबुक गुम हो गई मैम. तो स्टडी रूम में हम अपनी सारी बुक्स, नोटबुक्स, सारी चीजें एक साथ प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं. एंड स्टडी रूम में स्टडी टेबल इज देयर वेयर सिट एंड स्टडी पीसफुली. मतलब कोई वहां पे डिस्टर्ब नहीं करता. आप स्टडी रूम में हो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं. स्टडी रूम में लोग अपना, बहुत बार बड़े होने के बाद भी लोग घर में स्टडी रूम बनाते हैं. बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत पढ़ने का शौक होता है, या ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है. पीपल कीप देयर बुक्स, वहां पे अपना आराम से बैठ करके पढ़ते हैं. सो दैट इज स्टडी रूम. बाथरूम एज वी ऑल नो, बहुत बाथरूम जहाँ पे हम मॉर्निंग में व्हेन वी गेट अप वी गो टू ब्रश आवर टीथ, जहाँ ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, दैट इज बाथरूम. ठीक है. स्टोर रूम मैंने बताया, स्टोर रूम को बेसिकली लोग घर का एक्स्ट्रा जितना भी सामान होता है वहां ले जाकर के डंप कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं. अभी इसकी हमको जरूरत नहीं है, इस ट्रंक की जरूरत नहीं है, इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, अभी बुक्स वहां पे रख दो, बाद में काम आएंगी. तो जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती है, उनको घर में रखने की जगह नहीं है, या घर के अंदर हम नहीं रखना चाहते, तो हम स्टोर रूम में ले जाकर रख देते हैं. स्टोर रूम इज अ सेपरेट रूम. बाकी रूम्स की तरह स्टोर रूम भी एक सेपरेट रूम है. ओके, सो you can see these are different types of rooms in a house. Now in some houses there can be one bedroom, in some houses there may be two bedrooms or three bedrooms or four bedrooms.
ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर घरों में सेम नंबर ऑफ बेडरूम हो, अलग अलग नंबर भी हो सकता है। कुछ हाउस छोटे हो सकते हैं, कुछ हाउस बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। सो चिल्ड्रेन, आई विल स्टॉप हियर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा? माय होम। माय होम में हमने क्या पढ़ा कि वाई डू वी नीड अ हाउस, हमको घर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें घर क्यों चाहिए होते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम इन अ होम। घर में अलग अलग कौन कौन से रूम्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, सो चिल्ड्रन, आई विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच।